Hello students, welcome to the solutions of JEE Main Test 80 uploaded on NTA Abhyas app today. Right, so students, after so many tests, now this one was a good paper जिसमें relatively tough questions का count ज़्यादा है. So overall, I've regarded the paper as moderately tough, and a score around 50 to 55 and above will be taken as a good score in this paper. So let's see what it does have in this paper. The first question: a small block of mass m moves on a frictionless surface on an inclined plane. The angle suddenly changes from 60 to 30 at point B. The block was initially at rest, and we need to find the velocity at point C. राइट तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन सी ये डिस्टेंस अगर √3 है तो ये वाला जो डिस्टेंस जो आएगा वो 3 मीटर्स आ जाएगा, एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज आल्सो 3 मीटर्स. राइट देन इफ वी फाइंड द स्पीड एट पॉइंट बी, तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन वी हैव √2gh. That speed it comes out as √60 meters per second. Now, when it crosses point B and since the collision is perfectly inelastic, तो इसकी velocity जैसे यहाँ B पे अपन देखें तो collision के just पहले B पे velocity इस तरफ थी, और यहाँ पे अब we can observe कि ये angle जो है this is 30 degree. तो along the incline the velocity will be of course remain that unchanged. So velocity at point B just after the collision it will be this VB cos 30. तो along the incline the velocity is retained. So this is √60 cos 30 अपन यहाँ पे √3 by 2 place करें तो that comes out as √45 meters per second. तो ये B पर speed है after this collision event, right? Now B to C के लिए then again we can apply mechanical energy conservation, which is written as this again v square equals u square plus 2gh. mechanical energy conservation का ही modified form लिख रहा हूँ. तो this v is equals to u square, ये आपका 45 हो गया, plus 2g is 10, height is 3 again, and that under root. So this comes out as under root of 105 meters per second, which is given in option B. So again, it's a good question here जो concept apply हुआ कि B पर हमें along the incline जो velocity component होगा वो retain रखना है, वो carry forward करना है, और फिर B से C के लिए energy conservation लगाकर आंसर निकालना है. So good problem here. Next पे चलते हैं. Right, next question it says a metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double its previous length. तो अगर length double किया है by elongating it, तो ऐसे केस में r dash जो होगा that will be 4 times the initial value because r proportional to l square हो जाएगा, तो that comes out as 12 ohm. तो उसको r dash ले लिया. अब इसको हमने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया. The question says this new wire is now bent and the ends joined to make a circle. 2 points on the circle making an angle 60 degree at the center. यहाँ अगर ये 60 degree arc अपन देखें और ये let's say we have 2 points A and B और ये हमारे terminals बन गए हैं. तो since ये 60 degree angle है which is 1/6 of the complete circumference, 1/6 of the complete angle, तो इसको मैं मार्क कर सकता हूं as r dash by 6, और ऊपर वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा that will be 5r dash by 6. और अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो that is R1 R2 upon R1 plus R2. तो 5R dash by 6 into R dash by 6. This is R1 R2 upon R1 plus R2 is R dash. तो आपका वैल्यू जो इसमें बचेगा that will be 5R dash upon 36. अब यहां अपन वो R dash सब्स्टिट्यूट करें तो R dash का वैल्यू it is 12 and this is 36. So this comes out as 5 by 3 ohm. So this was an easy question, basics of resistance and equivalent पर based है, तो ये एक easy question था. Next पे चलते हैं. A conducting sphere A having radius A is charged to potential V1 is now surrounded by another conducting spherical shell of radius B. Right, तो as per the question ये scenario है कि अपन ने पहले एक ये A radius का shell consider किया, ये B radius का consider किया. The potential V2 acquired by the sphere A after it is connected to shell B, तो मैंने A को B के साथ कनेक्ट कर दिया, तो it now becomes as a single conductor, और अंदर वाले पे जो चार्ज है वो सारा बाहर सरफेस पे फ्लो आउट कर जाएगा. द बेसिक्स ऑफ कंडक्टर्स थ्योरी, राइट. तो इनिशियली जो V1 का वैल्यू था जब कनेक्ट नहीं किया था तो सारा चार्ज A वाले के सरफेस पे है, तो दैट पोटेंशियल वाज KQ by A. नाउ आफ्टर इट हैज फ्लोन आउट टू द रेडियस B, तो बाहर वाले के सरफेस पे सारा Q चार्ज पहुंच गया, तो जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी KQ by B. अच्छा, अगर मुझे A के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो सिंस ये कंप्लीट कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा,
तो वही V2 जो होगा बाहर वाले सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही अंदर भी अवेलेबल है। अच्छा, यहां से K क्यूब को अपन लिख सकते हैं V1 टाइम्स A, तो K क्यूब को मैंने V1 टाइम्स A लिखा एंड दैट अपॉन B, तो V1A बाई B इज द रिजल्ट विच इज गिवन इन ऑप्शन A। तो अगेन कंडक्टर्स थियोरी पर बेस्ड इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, a body starts from rest and moves with a constant acceleration, ratio of distance covered in the nth and n seconds, right? तो ये तो आप देखिए, जब हम nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय जो n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है, इनका रेशियो लें, तो nth के लिए द फॉर्मूला इज u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो u तो जीरो है, तो u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, दिस इज फॉर nth, एंड टोटल n सेकेंड्स के लिए इट इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, so u इज जीरो, तो हाफ a t स्क्वायर, so this comes out as 2n minus 1, this 2n minus 1 upon n square, which when simplified becomes 2 by n minus 1 by n square, which is given in option A. So kinematics 1D पर based बिल्कुल straight forward question था। next पे चलते हैं। The masses and radii of Earth and the Moon are given. Their centers are at a distance d apart. What should be the minimum speed with which a body of mass m should be projected from midway? Right. तो ये अपन यहां पे मान लीजिए m1 एंड m2 कंसिडर कर लें, और दोनों के सेंटर्स जो हैं वो d डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, और मिडवे, इट सेज मिडवे बिटवीन देयर सेंटर्स, यहां एक स्मॉल m मास का पार्टिकल रखा है, दिस इज m1, दिस इज m2, और इसको कोई v स्पीड से प्रोजेक्ट करना है जिसका मिनिमम वैल्यू वी नीड टू फाइंड सो दैट इट एस्केप्स। नाउ जस्ट टू एस्केप, अगर जस्ट एस्केप किया है इसका मतलब जो इन्फिनिटी वाला बाउंड्री है एक तरह से, वहां पे स्पीड जस्ट जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जितना भी काइनेटिक एनर्जी हमने इसको दिया स्मॉल m को, that is basically of course the loss in kinetic energy equals to gain in potential energy. अच्छा, final potential energy at infinity at escape point will be zero, और initial potential energy अपन देखें तो gm1 minus gm1 m2 by r वाले एक्सप्रेशन से देखोगे तो it is gm1 m2 upon d by 2 plus gm2m upon d by 2. This is the gain in potential energy and this is the loss in kinetic energy of that particle, right? अब इसमें स्मॉल m तो आपका कैंसिल हो गया, v स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है दिस इज 4 बाय d, दिस इज 4 g बाय d, एंड ब्रैकेट में वी हैव m1 प्लस m2, तो अंडर रूट ऑफ 4g m1 प्लस m2 बाय d, ये अपन को सर्च करना है, 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो उसके हिसाब से दिस सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगेन रूटीन क्वेश्चन ही था ग्रेविटेशन के एस्केप कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The temperature gradient in Earth's crust is 32 degrees Celsius per kilometer and the mean conductivity of Earth आपको दे रखा है, considering Earth to be a sphere of radius 6000 kilometers, right? The loss of heat by Earth every day is about. Now in this question actually since ये spherical sections हैं तो उसमें जो gradient है, जो area है, उसके consideration में when I saw the solution थोड़ा सा error है, बट जो एक पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहां पर ये इसी तरह से सॉल्व होना चाहिए दैट दिस h इज इक्वल्स टू k a dt बाय dx होता है ना। वैसे तो यहाँ पे ये एलिमेंट बाय एलिमेंट स्फेरिकल शेल एलिमेंट्स लेके सॉल्व होना चाहिए, बट यहाँ जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से अगर चलें तो देखिए k का वैल्यू वी आर गिवन 0.008, देन एरिया जो है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर में दिस इज 6000 किलोमीटर्स है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें बिकॉज यहां भी सेंटीमीटर ही यूज कर रहा है, तो दिस इज 10 to the power 5 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dt बाई dx इज 32 पर किलोमीटर है, तो 10 to the power 5 यहां भी आ गया, तो ये h अपन निकाल लेंगे यहां से। अब लॉस ऑफ हीट एवरी डे, तो Q जो होगा दैट विल बी h इंटू टाइम, अब टाइम जो है दैट्स 24 आवर्स, तो 24 आवर्स इंटू 3600 वो सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, और ये जब हम सॉल्व करेंगे, आई सॉल्व इट सेपरेटली, तो दैट कम्स आउट एज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 18 कैलोरी। तो डेफिनेटली द कैलकुलेशन इज डिमांडिंग। अप्रोच जो है जिस हिसाब से सोल्यूशन गिवन है, आई डोंट अग्री विद दैट अप्रोच कंप्लीटली, बट एज पर द डेटा गिवन दिस कैन बी द ओनली अप्रोच पॉसिबल हियर। तो पहले अपन ने h निकाल लिया यूजिंग k a dt by dx एंड देन q इक्वल्स टू h इनटू टाइम से अप्रोक्सीमेट आंसर 10 to the power 18 आ रहा है, तो that is given in option D here.
राइट तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था डेफिनेटली, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन प्रोसेस, ये हमें प्रोसेस कुछ दे रखा है, वे टी नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, राइट। अब यू नो दैट मिनिमम अटेनेबल प्रेशर, इट मींस हमें पहले प्रेशर फंक्शन बनाना होगा। तो इस टी को, यहां टी जो दिख रहा है, इस टेम्परेचर को इफ आई राइट पीवी बाय एन आर, एंड सिंस 1 मोल की बात हो रही है तो टी को मैंने लिखा पीवी अपॉन आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर। यहां से आर उधर चला जाएगा, वी डिनोमिनेटर में चला गया, तो पी का फंक्शन आपका बन रहा है आर टी नॉट बाय वी प्लस अल्फा वी, ठीक है, वी एक सॉरी आर अल्फा वी। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट, सिंस मुझे प्रेशर फंक्शन ये मिनिमाइज करना है, तो मैं डीपी बाय डीवी को जीरो कर सकता हूं। तो डीपी बाय डीवी करें तो दिस इज माइनस आर टी नॉट बाय वी स्क्वायर, वी का 1 बाय वी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय वी स्क्वायर, प्लस आर अल्फा वी का डिफरेंशिएशन इज आर अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आपका v का वैल्यू जो आएगा, दैट v का वैल्यू इट कम्स आउट एज टी नॉट बाय अल्फा अंडर रूट। तो इस वॉल्यूम पर आपका प्रेशर मिनिमम हो रहा है। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वॉल्यूम इन दैट फंक्शन, तो यहां से अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो दिस इज आर टी नॉट अपॉन v का वैल्यू इज टी नॉट बाय अल्फा अंडर रूट प्लस आर अल्फा v, दिस इज टी नॉट बाय अल्फा अंडर रूट। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए ये बन जाएगा आपका अल्फा टी नॉट अंडर रूट, और यहां पे भी अल्फा टी नॉट अंडर रूट आ रहा है, तो दिस p इट कम्स आउट एज 2r alpha t naught under root. So this is given in the first option. तो this was a good question here कि जहां पे हमें प्रेशर फंक्शन बनाना है और उसको डिफरेंशिएट करके dp by dv को जीरो करके आपको प्रेशर को मिनिमाइज करना था। So good question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Right, a wire in the form of a square of side A carries a current I. Then the magnetic induction at the center of the square wire is, right. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी एक वायर, मान लो किसी एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालूं, तो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी जो होगा डिस्टेंस जो होगा दैट इज साइड लेंथ का हाफ, मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं देयर ऑल 45 डिग्री, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा गिव्स यू 2 cos 45 डिग्री। तो अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरे का, दैट इज 4 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय वन वायर, वी हैव 4 सच वायर्स। So this it comes out as when simplified cos 45 यहां 1 by root 2 रख दूं तो ये 4 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए रूट 2, ये बच रहा है। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दिस इज 2 रूट 2, दिस इज 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो ये तो खैर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यू मस्ट हैव डन दिस प्रोफाइल बिफोर एज वेल। Right, to a stationary man, next question में rain appears to be falling at his back at an angle 30 degree with the vertical, right? As he starts moving forward with speed via this one, he finds the rain falls vertically, right? तो जो rain का velocity है with respect to the stationary person, मतलब with respect to ground, वो हमें ये दे रखी है जो vertical से 30 डिग्री पे है। तो this will be VR vector, right? ये ground के respect में। अच्छा, then the person starts moving with a speed 0.5 and the rain falls vertically. तो ये जो है जब person move कर रहा है, this will be the vector VRM, the velocity of rain with respect to man, because उसको move करने के बाद this rain appears to be falling vertically downwards, और man का velocity of course we can judge from here, ये आपका इस तरफ vector आना चाहिए, this is VM. Now this is 30 degree with the vertical, तो ये आ गया। अब we know that VRM वेक्टर जो होगा, this will be written as VR vector minus VM vector. We can see that VRM जो है that is purely vertical. तो VRM का x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं बच रहा है because VRM सिर्फ वर्टिकल में है। तो we can write VRM in x direction will be equals to VR in x direction minus VM in x direction. बेसिकली मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं, तो RM का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या है, 0, बिकॉज वो वर्टिकल है। अच्छा, रेन का VR का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा, इट विल बी VR cos 60, बिकॉज यहां पे एंगल 60 डिग्री होगा, उधर एंगल 60 डिग्री क्रिएट होगा, तो दिस इज VR cos 60 माइनस, अच्छा VM ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल ही है तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं करना है,
तो यहां से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आर, हमें वी आर ही पूछा था, द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब स्टेशनरी मैन. दिस वी आर इट कम्स आउट एज वी एम अपॉन cos 60. तो Vm का वैल्यू 0.1 cos 60 हाफ वो 2 ऊपर गया, तो दिस कम्स आउट एज 1 meters per second. सो अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन बट स्टिल अ यूजुअल कॉन्सेप्ट जो आपने पहले भी सॉल्व किया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट, फिगर शोज अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स. राइट, अब ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो पहले भी AIEEE में पूछा जा चुका है. तो अपन अगर यहाँ पे जैसे स्लोप चेंज हुआ ना, स्लोप चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ. इस जगह पे स्लोप कांस्टेंट थी 0 से 2, तो 0 से 2 सेकंड्स तक अगर अपन स्लोप देखें मतलब वेलोसिटी देखें, तो दैट वेलोसिटी इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज 1 meters per second. एंड सिमिलरली टाइम 2 सेकंड्स से लेके 4 सेकंड्स के बीच में द स्लोप हैज चेंज्ड, दैट वेलोसिटी आप स्लोप निकालेंगे तो -1 meter per second आ रहा है. नाउ वी नो दैट इंपल्स जो होता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम इट इज मास टाइम्स फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो आपके इंपल्स का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है दिस इज 0.8 न्यूटन सेकेंड. Right, so 0.8 Newton second is the value of impulse which is equal to change in momentum. So it's a very easy question based on momentum impulse theorem. Right, next question. There is a stream of neutrons with kinetic energy given. If the half-life of neutron is 700 seconds, what fraction of neutrons will decay before they travel a distance of 10 meters? Right, now in this question, आप देखें it says the stream of neutrons, they have a kinetic energy given. So first of all we need to evaluate the speed of these neutrons, which of course a demanding calculation. So half mv square, it is 0.0327 into 1.6 into 10 to the power minus 19. ये तो मैंने जूल्स में कन्वर्ट किया. मास हमें दे रखा है, तो यहां से जब हम मास सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैंने ये कैलकुलेशन अलग से सॉल्व किया है बट ऑफ कोर्स आपके लिए काफी डिमांडिंग कैलकुलेशन है ये. तो v स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, सॉरी ये आ रही है आपकी 2500. राइट, v की वैल्यू जो आ रही है वो 2500 मीटर्स पर सेकेंड यहां पे सब्स्टिट्यूशन के बाद सॉल्व करके आ रही है. अगर v 2500 है, then the time taken in moving this 10 meter distance, that time is this distance upon this constant speed. So this comes out as 4 into 10 to the power minus 3 seconds. ये टाइम आ गया. अब we can see that जो हमारा जनरल मेथड रहता है that dn by dt it is equals to lambda n, right? तो यहां से the fraction of nuclei that decays dn by n, that fraction will be lambda dt, or we can write delta n by n is equals to lambda dt. अच्छा, lambda को we can write 0.693 upon t half is 700, और dt this small duration of time जो है वो हमें दे रखा है 4 into 10 to the power minus 3. तो यहां से जो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा, right, when solved this fraction it ultimately comes out to be 3.96 into 10 to the power minus 6, which is given in option A. तो ऑफ कोर्स डिमांडिंग कैलकुलेशन, जैसे मैंने कहा ये तो मैंने सॉल्व करके रखा था ऑलरेडी ये कैलकुलेशन, बट आपके लिए एग्जाम टाइम में डेफिनेटली बहुत डिमांडिंग कैलकुलेशन है, तो ओवरऑल आई विल रिगार्ड इट एज अ टफ क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज q मास m इज फॉलिंग फ्रीली इन एयर विद टर्मिनल स्पीड v. तो अगर ये टर्मिनल स्पीड v से चल रहा है तो फोर्स बैलेंसिंग है इनिशियली. इसका मतलब दैट डाउनवर्ड mg is balanced with this 6 pi r eta v, this viscous force, because oil drop है, spherical मान के चल रहे हैं. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया और ये बोल रहा है कि ये अपवर्ड जाना चाहिए विद द सेम स्पीड, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो हो जाएगा अपवर्ड्स QE. अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो आपका जो विस्कस फोर्स है 6 pi r eta v, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और mg भी डाउनवर्ड है. अच्छा, अभी भी टर्मिनल स्पीड से ही जा रहा है, दैट मींस अभी भी फोर्स बैलेंस्ड है, द एक्सेलरेशन इज 0. तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी दैट इज QE इक्वल्स mg plus 6 pi r eta v. Now the 6 pi r eta v itself is mg from the first case, so we have QE equals 2mg. तो आपका E का वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज 2mg upon q, which is given in option B. So this was a very easy question here. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, ये पहले भी पूछ चुके हैं जेईई मेन टेस्ट में. आई थिंक देयर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन
एंड डेंसिटी बता रखा है, डिफरेंस ऑफ हाइट दे रखा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट, इसको कितना फोर्स लगाना होगा टू कीप दिस कंटेनर एट रेस्ट, राइट। अगर मैं यहां पे स्पीड्स v1 एंड v2 मान लूं, तो वी नो दैट जो थ्रस्ट फोर्स होता है दैट इज रो ए वी स्क्वायर। तो आपका जो नेट थ्रस्ट फोर्स आएगा दैट विल बी रो ए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो होता है, दैट स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज v इक्वल्स टू रूट 2 gh, वी नो दिस फॉर्मूला। तो यहां पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स अपन देखें तो दिस विल बी रो ए v स्क्वायर को मैं यहां 2gh लिखूंगा। अच्छा, ये v1 जो है, लेट्स से यहां से दिस इज एट अ डेप्थ ऑफ h1 एंड दिस वन इज एट अ डेप्थ ऑफ h2। तो this v square can be written as 2gh1 minus v2 square can be written as 2gh2। तो यहां से this is rho a 2g and h1 minus h2 वो डिफरेंस हमें h दे रखा है, तो this comes out as 2 rho gh into a। तो वो हिसाब से अपन अगर देखें तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो ये अगेन स्पीड ऑफ ई फ्लक्स फ्लूइड मैकेनिक्स पे बेस्ड एक इजी क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, a convex lens of focal length 10 and image formed by it is at the least distance of distinct vision magnifying power, right। तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है, दैट मींस ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट की बात हो रही है तो मैग्निफिकेशन इज 1 प्लस डी बाई एफ। 1 प्लस डी बाई एफ में डी अपन यहां 25 प्लेस कर दें, एफ की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो दिस कम्स आउट एज 3.5। सो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, next it says a uniform disk of mass m and radius r is mounted on a fixed horizontal axis. A block of mass small m hangs from a massless string and is wrapped around the rim. तो अगेन रोटेशन का बहुत रूटीन प्रॉब्लम है ये, कि जब आप ब्लॉक का ट्रांसलेटरी मोशन और पुली का रोटेशनल मोशन लिखोगे तो वी विल हैव ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ब्लॉक एज mg minus t equals to ma, rotational motion of pulley as tr equals to I alpha, and then the connecting relation A equals to alpha r। इन तीनों को जब अपन सॉल्व करते हैं तो यहां से जो आपका अल्फा का वैल्यू आता है दैट इज टाउ नेट अपॉन आई नेट। तो इफेक्टिवली टॉर्क नेट आपका बन जाएगा mgr और आई नेट बन जाएगा mr स्क्वायर प्लस डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज अल्फा। देन A इक्वल्स टू अल्फा r के हिसाब से जब A निकालेंगे तो ये A इक्वल्स टू अल्फा r, r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो r स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, तो दिस इज m g अपॉन m प्लस m बाई 2। इसमें एलसीएम ले लें तो ऑप्शंस के हिसाब से 2mg न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M, तो 2mg डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन बी। Right, so this is the result for this situation. So again, very straightforward and a routine problem. Right, next question. A change of 8 milliampere in the emitter current brings that much change in collector current. Values of alpha beta, ठीक है। तो alpha जो होता है, we know that this alpha is delta IC upon delta IE. Standard formula है। This delta IC we are given it is 7.9 milliampere upon 8. So this approximately comes out as 0.99 and beta के लिए we know the connecting relation is alpha upon 1 minus alpha. When the value of 0.99 is substituted here, तो beta की value जो आ रही है वो approximately 79 आ रही है। तो alpha और beta अपन देखें तो 0.99 और 79 जो ऑप्शन डी में हमें मिल रहा है, तो सेमीकंडक्टर्स का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, then the specific heats of an ideal gas at constant pressure and constant volume। तो देखिए यहां इसने स्पेसिफिक हीट्स लिखा है, मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी सीपीसीवी की बात नहीं हो रही है, ये स्पेसिफिक हीट मतलब ये एसपी और एसवी की बात हो रही है। तो एसपी माइनस एसवी अगर हम निकालें, हमें एसपी और एसवी दे रखे हैं, स्पेसिफिक हीट्स दे रखे हैं, तो इनका जो डिफरेंस है दिस इज 210, राइट। Now, when we convert these specific heats to molar heat capacities, तो ऐसे केस में अगर मैं इन specific heats को molar mass से multiply कर दूं, we know that the specific heats are the heat capacity per unit mass and the molar heat capacity is the heat capacity per unit mole। तो इसको मैं molar mass से अगर multiply करता हूं ना, then it converts to the molar heat capacity, of course वो Cp minus Cv बन जाएगा। तो molar mass हमें नहीं पता,
SP minus SV का वैल्यू इज 210 इन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड CP माइनस CV का वैल्यू इज R, दैट इज 8.314। तो यहां से मोलर मास का वैल्यू अगर निकालूं R बाय 210 करके, वो 8.3 अपॉन 210 कर रहा हूं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.0392 ये मोलर मास आ रहा है। नाउ सिंस वी आर वर्किंग एट एनटीपी, राइट, तो एक मोल का जो वॉल्यूम है दैट इज 22.4 लीटर, तो आपका डेंसिटी जो आएगा दैट इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास तो है 0.0392 अपॉन 22.4 लीटर्स, तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो व्हेन दिस इज सॉल्व्ड इट कम्स आउट एज 1.75 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में पूरा चला है, मोलर मास आपका किलोग्राम में ही आया था बिकॉज ये सब किलोग्राम और उन्हीं डेटा में चल रहा है। तो उसको सॉल्व करने से रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम मैंने लिया, तो वो 1.75 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा है जो ऑप्शन सी में गिवन है। So this was again an easy question, but you'll have to be careful. आप सीधा इसको CP माइनस CV ना समझें, स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो ये SP माइनस SV की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the dimension of magnetic flux, right? Magnetic flux, we know that जो induced EMF होता है, that induced EMF which is minus n d phi by dt, it has a dimension of phi upon time, और EMF का जो dimension होता है that is work done upon charge, that potential difference is work done upon charge, तो ये work done upon charge मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इन सब का जो डायमेंशन मिलाकर आएगा वो फ्लक्स के डायमेंशन से मैच करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपका जो फ्लक्स का डायमेंशन आएगा विच इज वर्क डन, इट इज ml स्क्वायर t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय t अपॉन चार्ज इज at, तो आपका जो डायमेंशन यहां पे आ रहा है दिस इज ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1। तो ml square t minus 2a minus 1, it is not mentioned in any options, but I think the calculation is correct here. So this has to be a bonus question because इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो फिट नहीं बैठता, बट रिजल्ट आपका यही आना चाहिए इसमें। सो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं। साउंड वेव्स इन द एयर आर ऑलवेज लॉन्जिट्यूडनल बिकॉज, नाउ देखिए ट्रांसवर्स वेव तभी चलती है व्हेन द मीडियम हैज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड सिंस एयर डज नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी, तो दिस बी बिकम्स द करेक्ट रीजन फॉर दिस, कि साउंड वेव्स जो एयर में है वो हमेशा लॉन्जिट्यूडनल इसलिए है बिकॉज ट्रांसफर्स होने के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है जो एयर के पास नहीं है। तो बी इज द मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन, राइट। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में it says a block of mass 0.1 kg is connected to a spring of unknown spring constant K. It is compressed to a distance x from its equilibrium position and then released. After approaching x by 2, it hits another block and comes to rest और दूसरा ब्लॉक 3 पे चल गया। ओके तो ये वाला ब्लॉक देखिए किसी स्पीड से चल रहा था और दूसरा वाला रेस्ट पे था। हिट करने के बाद ये ब्लॉक रेस्ट पे आ गया और दूसरा वाला चलने लगा। देखिए वैसे तो दिस लैंग्वेज डज नॉट गिव अ कंप्लीट अश्योरेंस कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद आइडेंटिकल मास है, बट जो फीलिंग ये क्वेश्चन हमें देना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि द वेलोसिटीज दे हैव इंटरचेंज, बिकॉज जो चल रहा था वो रेस्ट पे आ गया, तो मतलब दूसरे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी फर्स्ट वाले को मिल गई, तो फर्स्ट वाले की दूसरे को मिली होगी। इसका मतलब कोलिजन के जस्ट पहले जो मेन ब्लॉक है ये 0.1 kg वाला, उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड रही होगी जो एक्सचेंज होके बाद में दूसरे के पास गई। ऑफ कोर्स ये एसएचएम का सिनेरियो है जब ब्लॉक को स्प्रिंग को एक्सटेंड करके रिलीज किया, तो वी हैव v एज ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड वी आर गिवन। तो ओमेगा की जगह मैं अंडर रूट ऑफ k बाय m रख सकता हूं, तो अंडर रूट ऑफ k अपॉन मास इज 0.1, एम्पलीट्यूड जो है वो x है बिकॉज x तक खींचकर उसको रिलीज किया है, और x ये जो डिस्टेंस है ये x बाई 2 है, तो x स्क्वायर ये x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो x की जगह x बाई 2, एम्पलीट्यूड की जगह x, एंड दिस इज 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वी हैव दिस 10k मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर बाय 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से आपका kx स्क्वायर बाय 2 का वैल्यू मुझे निकालना है ना, इट सेज द टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का टोटल एनर्जी मतलब क्या, हाफ kx स्क्वायर, तो इस 4 का 2 मैंने यहां रख लिया, तो kx स्क्वायर बाय 2 का वैल्यू मुझे चाहिए, तो दैट कम्स आउट एज दिस इज 2 9 18 बाय 10, दैट कम्स आउट एज 1.8 एंड सॉरी दिस इज 2
के एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां से 2 उधर जा रहा है, दिस इज 18 एंड दिस इज 3, 6.6 आ रहा है, राइट। तो के एक्स स्क्वायर बाय 2 का वैल्यू जो है वो 0.6 जूल यहां पे आ रहा है, तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो ये तो खैर इजी क्वेश्चन था, बट हाँ ये थोड़ा सा डुबियस बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमें मान के चलना पड़ रहा है कि अच्छा ये वेलोसिटी एक्सचेंज हो गए हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, आइडेंटिकल मास रहे होंगे, तो उस फर्स्ट वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बिफोर हिटिंग 3 मीटर पर सेकंड रही होगी, और उसको अपन ने x बाई 2 की स्पीड मान ली, और v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में 3 वैल्यू लिया है, राइट। Right. So in this question it says a hydrogen-like atom described by the Bohr model is observed to emit 6 wavelengths originating from all possible transitions from between a group of levels. अच्छा, इन लेवल्स जो हैं उनकी एनर्जी 0.85 और 0.54 के बीच में है, बट ये मेंशन नहीं है कि ग्राउंड लेवल है या नहीं है। तो अपन देखें ऐसे केस में if we write total number of transitions n into n minus 1 by 2 that is given as 6, तो यहां से आपका n का वैल्यू जो है वो 4 आ रहा है। मतलब अगर एक ग्राउंड लेवल होता 1 तो दूसरा n इक्वल टू 4 होता। इसका मतलब जिन लेवल्स की बात हो रही है ना उनमें जो गैप है वो 3 का है। दैट इज द मेन थिंग जो हम यहां से निकालना चाह रहे थे। लेवल्स 1 और 4 नहीं है, बट उनमें गैप जो है वो 3 का है, कि अगर 1 होता तो दूसरा 4 होता, दैट मींस द गैप इज 3। तो अगर मैं लेवल्स 1 को मानता हूं mth लेवल, तो दूसरा मुझे लेवल मानना होगा m प्लस 3। तो आप देखिए अब जो एनर्जी एक लेवल में होगी दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 0.85, इट्स नॉट जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं है। देन और m प्लस 3 जो लेवल है इट विल बी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड दैट वैल्यू इट इज 0.54। तो ये दो इक्वेशंस अब आपको z और m में मिल रही हैं, इन दोनों को डिवाइड करके अपन m का वैल्यू निकालें, तो डिवाइड करके जब m की वैल्यू निकाल रहे हैं तो दैट इज कमिंग आउट एज 12, एंड अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू निकालें तो आपका z का वैल्यू जो इसमें से आ रहा है दैट इज 3। तो हमें एटॉमिक नंबर पूछा था, तो z इक्वल्स टू 3 इज द आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, 5 kg block is now released, assuming the pulleys and string to be massless and smooth. The acceleration of block C is x by 10. Find the value of x. Fine, ठीक है। तो जब इसमें ब्लॉक A को हम रिलीज करेंगे, तो लेट्स से ये ब्लॉक तो नीचे की तरफ मूव करने लगा। अब इसमें अपन देखें तो यहां से टेंशन T लग रहा है, यहां से ये टेंशन T लग रहा है, इधर जो टेंशन होगा दैट विल बी 2T, तो यहां पे टेंशन 2T आएगा। अब टेंशन का वैल्यू जो होगा यहां, ऑफ कोर्स जब ए पे मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ब्लॉक ए की इक्वेशन, ब्लॉक ए की फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो ये mg माइनस टी इक्वल्स एम ए आएगा। मतलब टेंशन जो है वो mg से कम है, 50 से कम है। तो टेंशन अगर 50 से कम है इसका मतलब 10 kg ब्लॉक, ब्लॉक बी तो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो ब्लॉक बी जो है वो रेस्ट पे रहेगा। तो बी का कोई इक्वेशन नहीं लिखना है, बी जो है वो रेस्ट पे है। फर्दर अब बी जब रेस्ट पे है, अकेला ए मूव कर रहा है, तो ए अगर यहां आप देखिए x डिस्टेंस बढ़ता है तो पुली विल मूव डाउन विथ x बाई 2। कंस्ट्रेंट मोशन बेसिक्स अप्लाई करें तो ब्लॉक ए अगर x से आगे बढ़ेगा, ब्लॉक बी मूव ही नहीं करेगा, तो पुली x बाई 2 से नीचे आएगा, तो ब्लॉक सी जो है वो x बाई 2 से ऊपर जाएगा। इट मींस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन अगर a डाउनवर्ड है तो ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन a बाई 2 अपवर्ड होना चाहिए, जो हमने कंस्ट्रेंट मोशन से निकाला। तो सी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इट विल बी 2t minus mg which is 8g and that is equals to mass times acceleration, acceleration a by 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करें, यहां m की वैल्यू 5 थी, इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करें तो वी आर गेटिंग, इसको 2 से डिवाइड करके अपन ऐड कर दें, t गेट्स कैंसिल, दिस इज g इक्वल्स टू 7a। तो आपका एक्सेलरेशन वैल्यू जो आ रहा है दिस इज g by 7, g का वैल्यू क्वेश्चन से 9.8 लेना है, तो दिस इज 9.8 by 7, सॉरी इट इज g by 7, तो दिस इज हाँ 9.8 by 7। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक c अपन देखें, ब्लॉक c का एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो वो a by 2 है, तो a by 2 जो आएगा इट विल बी 9.8 अपॉन 14, तो ये वैल्यू 9.8 by 14 जो है दिस कम्स आउट एज 0.7, 0.7 मतलब ये 7 by 10 आ रहा है, इसका मतलब आपका x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 7 हमें मिल जाएगा। तो ये x का वैल्यू निकालना था, दैट कम्स आउट एज 7। तो अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट मोशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
A non-conducting ring of mass m 4 kg and radius r has charge q uniformly distributed over the circumference. अब ये जो है magnetic field is switched on and ring starts rotating about the vertical axis, right? फाइन. तो अब ऐसे केस में पहले अपन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यहां, तो आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा, वी कैन कैलकुलेट इट एज दिस इज r बाई 2 टाइम्स dv बाई dt. अपने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के थ्रू दिस इज r बाई 2 टाइम्स dv बाई dt. तो दिस इज r बाई 2 dv बाई dt कैलकुलेट करें तो दिस इज 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर. तो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 6r t स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. ठीक है. अब फोर्स हम निकालें कितना लगेगा, तो दैट इज QE, और उसका जो टॉर्क होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क होगा दैट विल बी QER. तो दैट टॉर्क इज QER which is 6r square t square q. ठीक है. Now accordingly this coefficient of friction we can see it says time 5 पे the ring starts to rotate. That means ये जो टॉर्क है आपके फ्रिक्शन के टॉर्क से अल्टीमेटली उस जगह पे बैलेंस हुआ होगा, क्रॉस किया होगा. तो we can write it as 6r square t square q and that is equals to mu mgr. ये उसका टॉर्क है फ्रिक्शन वाले का. ठीक है. तो इसमें एक r कैंसिल हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली आपका म्यू का वैल्यू जो इसमें आ रहा है दिस इज 6q RT स्क्वायर अपॉन mg. ठीक है. अब इसमें अपन वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट कर दें तो 6 इंटू क्यू का वैल्यू इज 2, रेडियस वी आर गिवन 10 सेंटीमीटर तो इज 0.1, t स्क्वायर इज 25, मास का वैल्यू वी आर गिवन 4 kg दैट इज 4 एंड g इज 10. तो यहां पे इफ वी सब्स्टिट्यूट वी गेट म्यू का वैल्यू एज 3/4 आ रहा है. दिस 3/4 कैन बी मॉडिफाइड एज 18 अपॉन 24 और ये यहां पे हमें k/24 कहा गया था. तो यहां से k की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 18, राइट. तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 18. तो अ गुड क्वेश्चन, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th. इट सेज टू ब्लॉक्स विद मासेस गिवन आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस. इसको वेलोसिटी इंपार्ट किया है. द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. अब इसमें देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अदर इज बेसिकली गिवन बाय द मैक्सिमम कंप्रेशन, राइट. कि एक के रिस्पेक्ट में वो दूसरे का जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वही एम्पलीट्यूड बनेगा. तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए हम सीएम फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज करें कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज जो है वो मोमेंटरीली इक्वल हो जाएंगी. यू नो दैट कॉन्सेप्ट कि दो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी. तो उस समय रिलेटिव वेलोसिटी विल बिकम जीरो. तो सीएम फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है विच इज हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर. तो इनिशियली इस हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर का वैल्यू नॉन जीरो है और मैक्सिमम कंप्रेशन पे जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो रही है तो उस समय वी रिलेटिव जीरो हो जाएगा. तो ये कंप्लीट हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर जो है उसका लॉस हुआ है और वो कन्वर्ट हुआ है टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ये स्प्रिंग के कंप्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है. तो अब म्यू का वैल्यू वी हैव m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. ये हाफ हाफ दोनों तरफ कैंसिल कर दिया. वी रिलेटिव देखें तो एक की वेलोसिटी 12 थी, दूसरा वाला रेस्ट पे था. तो वी रिलेटिव इज 0.12 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. तो हाफ तो कैंसिल हो चुका था. k का वैल्यू इट इज 24 एंड दैट इनटू एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालना है. तो दिस इज 0.12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1/36, राइट. तो x की वैल्यू जो बच रही है दिस इज 0.12 अपॉन 6. तो दिस इज 0.02 मीटर्स. तो अकॉर्डिंगली दिस इज 2 सेंटीमीटर्स. तो हमारा आंसर जो है वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है. सेंटीमीटर्स में आंसर पूछा था तो इट इज 2. तो सीएम फ्रेम पर बेस्ड एक इजी क्वेश्चन था बट ओवरऑल अ गुड फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन हियर, राइट. लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 4 monochromatic and coherent sources of light emitting waves in phase at are placed along y-axis 0a 2a 3a. इंटेंसिटी जो है वो बता रखी है कि जहां पे जाके मर्ज करेंगे और सबका इंटेंसिटी आई नॉट है. ओके. देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट p फॉर a इक्वल्स टू लैम्डा बाय 8. तो अपन देखें अगर इन्हें हमने चार अलग अलग प्लेसेस पे रखा
इसका मतलब इनके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 0, देन a मतलब दिस इज लैम्डा बाय 8, देन फर्दर 2a is 2 lambda by 8 and it is 3 lambda by 8. तो these are the places where they are kept. अच्छा, पॉइंट P जो है वो y एक्सिस पे ही है, तो ये जो y हमें दे रखे ना, ये इन सब के बीच के पाथ डिफरेंस बन जाएंगे, बिकॉज जो 0 से P तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नेक्स्ट वाला जो है वो लैम्डा बाय 8 कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देन द नेक्स्ट वाला इट इज ट्रेवलिंग अ लेसर डिस्टेंस बाय 2 लैम्डा बाय 8. ये सब पाथ डिफरेंस है. Now phase difference we know it is given by 2 pi by lambda times the path difference. तो इन सभी के करस्पॉन्डिंग जो आपका फेज डिफरेंस आएगा दैट विल बी 0. फिर यहां लैम्डा बाय 8 प्लेस करें तो दिस इज पाई बाय 4, देन इट इज पाई बाय 2 एंड देन इट इज 3 पाई बाय 4, राइट. तो अब अगर हम इनको चार वेक्टर्स की तरह ट्रीट करें तो ऐसे केस में दे कैन बी रिप्रेजेंटेड हियर एज कि फर्स्ट वाला जो है इंटेंसिटी वो यहां है, सेकेंड वाला इस जगह पे है विच इज एट पाई बाय 4, थर्ड वाला यहां पे है विच इज एट पाई बाय 2 एंड फोर्थ वाला यहां पे है इट इज एट 3 पाई बाय 4. नाउ यू कैन सी दैट इंटेंसिटी 1 और 3 में 90 डिग्री एंगल है, तो 1 और 3 का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा वी नो इट इज I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. फॉर्मूला आपका ये होता है, इट इज I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, तो इट इज I नॉट प्लस I नॉट प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. cos phi वहां पे 90 डिग्री आना है, cos 90 0 हो जाएगा, तो दैट रिजल्टेंट इज 2 I नॉट 1 3 का. सिमिलरली 2 4 देखें अपन, तो 2 और 4 में भी 90 का फेज गैप है, 2 और 4 में भी 90 का फेज गैप है, तो उसके हिसाब से दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 2 I नॉट. अब 1 और 3 का जो रिजल्टेंट आएगा यहां, ठीक है, दिस विल बी 1 3, और 2 और 4 का जो रिजल्टेंट आएगा इधर, उनके बीच में फेज गैप जो बचेगा वो पाई बाय 4 का बचेगा. तो अब अपन देख रहे हैं दिस इज 1 3 एंड 2 4. इनका रिजल्टेंट अगर देखोगे तो दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. cos phi कितना है, पाई बाय 4, तो उसके हिसाब से दिस इज 4 I नॉट प्लस दिस इज 2 एंड 4, तो 4 I नॉट cos pi by 4 1 by root 2, तो दिस कम्स आउट एज 4 I नॉट प्लस 2 रूट 2 I नॉट. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज 6.8 I नॉट. अब यहां हमें n I नॉट निकालना है और n I नॉट के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है, तो यहां से n की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसकी वैल्यू आपकी 6 आ रही है, तो आंसर यहां पे जो आएगा दैट विल बी 6. सो अ वेरी वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें लैंग्वेज बहुत प्रॉपर्ली सुपर्बली मेंशन थी, बट हाँ सोल्यूशन जो है दैट्स मोर और लेस अ रूटीन सिचुएशन, राइट. सो जैसा आपने ऑब्जर्व किया इट वाज अ वेरी वेरी गुड पेपर जिसमें आपने काफी अच्छे क्वेश्चन सीखे. कैलकुलेशन बहुत डिमांडिंग थी, बट हाँ पेपर में इजी क्वेश्चंस भी थे जहां पे आप टाइम भी सेव कर सकते थे, जहां पे आप मार्क्स भी स्कोर कर सकते थे. तो एज आई सेड अराउंड 50 to 60 इज अ गुड स्कोर इन दिस पेपर, right students. So you keep working hard, you remain motivated, and remember you can and you will. Thank you.